good evening and welcome to Sports Gujarati. मैं हूँ रोहा नदीम. We are back with another episode and there is once again so much to cover today in the context of Pakistan cricket and of course so much else that is happening and that is brewing around Pakistan cricket. But आज हमारा focus होगा of course Pakistan versus Bangladesh 2-match test series पे जो कि white wash कर दिया बांग्लादेश ने पाकिस्तान को रावलपिंडी में one after the other. Important victory for Bangladesh given the context and of course there is so much to dwell upon. Let's take a look at what happened in Rawalpindi. Uneventful, not an uneventful last few days if you look at the scorecard, and we have seen day after day. पहला दिन of course हम नहीं देख सके due to rain, but then उसके बाद जो rebuild किया बांग्लादेश ने, and of course their paces, so much to talk about over there. And we have the visuals for you, we have all of the clips for you, so we will relive all of that action and everything that happened, and we'll try to of course analyze it on our show as well. Scorecard भी है, fall of wickets भी हैं. हम लोग of course bit by bit उसको dissect करेंगे क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के हालात इस वक्त थोड़े से sensitive हैं. हमने कैप्टन की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, so we will look into all of that as well. I've got with me the Glitterati regulars who have joined me once again to unpack Pakistan cricket. It is a task to unpack Pakistan cricket, but we will give it another try. Glitterati gang में जो prime member है Hassan Azam, sports analyst and expert. Assalamu alaikum Hassan, welcome to the show. How are you doing? You're smiling widely, but not a lot of reasons to smile this week for you. Yeah, absolutely. Walaikum assalam. Pleasure to be here once again, first of all. And yes, sometimes you have to smile to get rid of the sorrows you have to face. I mean, it's a tough one to swallow for the Pakistani team, Pakistani fans, and the pride we have as a nation when it comes to cricket, our premium sport. Losing to Bangladesh 2-0, all credit to them. But yeah, I mean, as you said, there's a lot to go into why this happened, how can it improve, and all those things. Well, cricket commentator and expert Ali Yunus has joined us once again. Ali, assalamu alaikum. Welcome back to the show. Great to have you as always. Lots to get into. Not an easy way to look at it. And I'm sure as cricket fans, we're all feeling a little upset, a little frustrated. Yeah. We have our own ways of making sense of it. But what are your thoughts going into unpacking what happened in Rawalpindi at the hands of the visitors, Bangladesh? Well, they're no different than anyone else. I am disappointed, as Hassan said. He is disappointed, as you are disappointed. Everyone, like everyone, because this is not what we were hoping. If you remember, we spoke about that I want Pakistan to dominate in this home series, but that hasn't happened. Bangladesh has dominated. I think the clear difference was the purpose. जो purpose था वो missing था दोनों teams में. मुझे जो feel आई, Bangladesh were here with the purpose. They wanted to win. There was hunger in their camp. They wanted to do well for their team, for the people back home, जिस तरह के उनके political हालात चल रहे हैं. And on the other hand, हमारे पाकिस्तान में ऐसा लग रहा था जैसे we just playing. हमारे जीतना कोई मकसद नहीं है, वो hunger नहीं थी जीतने की. और अब आई डोंट नो, इसमें पीसीबी को हम ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि उनका कसूर नहीं है. यहाँ पे तो सारा का सारा कसूर जो है वो प्लेयर्स का, प्लेइंग 11 का कसूर है जो लोग खेल रहे थे, क्योंकि ऐसी कोई मुश्किल पिच नहीं थी, ऐसे कोई डीमंस नहीं थे कि जहाँ पे आप इस तरीके की परफॉर्मेंस देते. ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, दे हैड पेस, बट इतना कुछ मुश्किल नहीं था कि जिस तरह के शॉट्स आपने खेली हैं और आप आउट हुए. आई थिंक दे कैन नॉट ब्लेम एनीवन बट देमसेल्फ. And there is a lot of blame going around. इस वक्त उसके ऊपर भी बात करेंगे. थोड़े से अभी रिफ्रेश करते हैं, जॉग करते हैं अपनी मेमोरी को, विनिंग मोमेंट्स भी देखते हैं. Of course, so much to win for Bangladesh, right? More to play for. I mean, you talk about somebody like Mushtaq Ahmed, who knows the local culture, who's been their spin bowling coach, was talking about before the first test that they're all the belief going into that test match. And you're always thinking as a Pakistani fan, कि वो कभी भी हमारे खिलाफ टेस्ट मैच नहीं जीते. How are they thinking of winning this series? But that's the drive they had, and it showed. They dominated Pakistan in all three departments easily. With the bowling, they had plans. With the batting, they had plans. They showed, and with the fielding, they gave it their all. They stuck to their chances, and kudos to them for the win. अली, आपके पास आते हैं एक, अगर हम मैच समरी पे भी एक नज़र दोबारा से डालें. नॉट अ लॉट ऑफ ओकेजन्स इन टेस्ट हिस्ट्री जहाँ पे आप देखेंगे एक टीम 26 for 6 है और वहाँ से आपने उनको अलाउ किया टू रीबिल्ड एंड देन टू रीबिल्ड सम मोर to give them that cushion. And then Pakistan, I mean, do they have only themselves to blame looking at this, looking at the changes that we made in the second test?
Changes, we were expecting the same changes. I think we've been talking about it on the show that Mir Hamza and Abrar will come in this test match, but that just didn't happen for them. From 26 for 6 to getting to 274, I think that you have to give the credit to Bangladeshis here because they played really well. I think Liton Das had saved the best for this inning. मुझे नहीं लगता कि मैंने उसको इतना अच्छा कभी खेलते हुए देखा. He's more of a dasher who likes to hit big, but the character he showed in this inning along with Mehdi Hasan Riaz, I think that was tremendous. That showed the purpose that we've been talking about. They just don't want to go down thinking कि हमारे साथ क्या हुआ, जैसे हमेशा से होता है. They had a purpose. They could sniff that पाकिस्तान की इस वक्त weak side है या low in confidence है, इनको आप हरा सकते हैं, और वही उन्होंने किया. उन्होंने अपने आप को अप्लाई किया और एक पर्पस के साथ खेले. उन्होंने कंडीशंस को अच्छे तरीके से पहले असेस किया एंड देन उन कंडीशंस के मुताबिक उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 खिलाई, और जो जिसको भी खिलाया उन्होंने अपना जो टास्क दिया गया था उसके ऊपर वो पूरा उतरे हैं. एंड स्कोर कार्ड इज देयर. Yeah, absolutely. I think रोहन, जिस तरह आपने कहा कि टेस्ट हिस्ट्री में 50 से कम स्कोर पर अगर कोई साइड 6 विकेटें लूज कर चुकी है तो उसने कभी भी 262 स्कोर नहीं किया इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट. That means you lost a big opportunity as a side to bowl that side out early when you had a fantastic start within 10 overs, got them 6 down. I think in that period जहाँ पे लिटन दास खेले और मेहदी हसन मिराज आए, शुरू में तो लिटन दास was cautious because of the way the ball was moving, लेकिन वहाँ पे शायद आपको ये भी लगा कि maybe Mohammad Ali Daisy, who looked stiff in the first test, maybe you could have had a Naseem Shah, which I think Shan alluded to after the game as well in his press conference. And you had to add somebody there, right? Between them, they had very little test, all three of them, although they have a lot of experience coming from, the domestic front. But in terms of doing that, and वो follow-up act नहीं हो पाया. जब खुरम tied up, bowled his 7th over, is almost like यार इससे break दे दी जाए अब. Nobody could follow that act up. और जब Liton, when he got into form, you finally were able to break that partnership, and you can talk at length about that partnership. जब 5वीं 6ठी बॉल पर लिटन दास सिंगल कर रहे थे, you almost felt like यार अब 3 गेंदों बाद फील्ड ऊपर ले आए, let him take that chance. Almost felt like the captaincy was missing there. Pakistan was just going through that moment, almost shocked कि 21 पे 6, 26 पे 6 से आप इस स्कोर तक कैसे ले आए हैं. I think we were reactive rather than proactive at some points, and that's why we got there. बट आपने जो अभी बात की कि हम उस पॉइंट के बाद उनको वो मैच जिस तरह हमने उनको प्लेट में रख के दिया, it isn't the first time that this has happened in the recent past. Last 5-6 test matches अगर आप देखें, Pakistan have been in the winning position in the first innings. In the first half of that match हम हमेशा अच्छे position से, हमने ऑस्ट्रेलिया में भी ये किया, and the captain knows it, and the captain talked at length about this problem कि क्यों हम पहली innings में एक अच्छा, हम बैटिंग भी अच्छी, up to 274 जहाँ पे हमने की है, पाकिस्तान ने, they put that on the board. बांग्लादेश की entire batting unit before that partnership, they all struggled on that pitch. That showed that we had that determination to take that game forward. Ali, why do you think that happens? Why do we let go of the game after being in the driver's seat and dominating for half of that test match? Well, it's a tough one. It's a tough question to ask because one cannot say, because these are international professional cricketers. अब आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं to absorb that pressure and perform in those pressurous situations, but ऐसा नहीं हो पा रहा. अब I cannot ask बाबर आजम कि वो कैसा खेले ऐसी situations के अंदर, या रिजवान is the only one who खेलता है. I think the problem is जो हम अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमने कौन सा ब्रांड क्रिकेट का खेलना है. कभी हम इंग्लैंड को कॉपी करने चले जाते हैं, कभी हम किसी और को कॉपी करने चले जाते हैं. हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एज अ टीम कि हम कौन सा ब्रांड खेलना चाहते हैं. और टेस्ट मैच क्रिकेट ऐसे नहीं खेली जाती है कि आप आएँ और मुंह उठा के शॉट्स खेलना शुरू कर दें. आप जितने भी डिसमिसल्स देखेंगे पाकिस्तान के दोनों इनिंग्स के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ द डिसमिसल्स जो हैं वो आउटसाइड द ऑफ स्टम्प आप पोक करते हुए आउट हुए. इसका मतलब है आपके पास वो टेक्निक नहीं थी जो आप सर्वाइव करें ऐसी कंडीशंस के ऊपर, जो कि डेड बैट से खेल सकें. जैसे समबडी लाइक अजहर अली, जैसे वो एक जो नंबर 3 के ऊपर जो रोल निभाया करते थे, ऐसा कोई एक प्लेयर भी नहीं है कि ऐसी थोड़ी सी मुश्किल कंडीशंस आएँ कि आपको कोई रोक के खेलने वाला प्लेयर हो जिसको ऐसी टेक्निक हो जो मुश्किल बॉलों को भी सर्वाइव कर सके. बट यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम टेक्निक का है. हमारे पास ऐसा कोई बैटर नहीं है जो मुश्किल कंडीशंस में अच्छी टेक्निक यूज़ करे और वहाँ पे विकेट पे ठहर सके, क्योंकि आपको ऐसी कंडीशंस में विकेट पे टाइम गुजारना पड़ता है. जैसे भी हसन ने कहा कि लिटन दास शुरू में आके अपनी नेचर के अगेंस्ट खेला, वो उसने बॉल्स रोके हैं, उसके बाद उसको रन ईजी मिले, तो हमारे पास ऐसा कोई बैटर मुझे नज़र नहीं आता. I think Ali, I agree with a lot of what you said. I think one thing I might disagree with is maybe, I think technically we are equipped to face a lot of these things. I think the same people
You talk about Babar Azams, you talk about South Shakils, their hundreds in Australia, South Africa, you talk about Shan Masood, Sri Lanka. It's more about that we've lost our way of how we play test match cricket, right? It's more about we played so much because white we ball barely cricket. get to play test match Yes. cricket, so that's where the core problem lies. अब इसको Yeah. कौन solve अब करेगा? देखें आप जब इतनी वाइट बॉल क्रिकेट खेलेंगे, I absolutely agree with you. Technical faults there, but it's not an issue of not having technique. It's an issue of not moving your feet enough. You've not played enough red ball cricket Yeah. to stay used to moving your feet enough and utilizing that. I absolutely agree with you. And you. शान मसूद, I mean, उन्होंने बहुत अच्छी तरह इस पे रिफ्लेक्ट भी किया बाद में भी. But the only reason that we didn't play that spinner in the first test was because he wanted to divide that workload so that the bowlers don't get tired bowling those long spells. Isn't that a problem? I mean, you should be able to play your ideal 11, not worrying about whether your bowlers are fit enough Yes. to carry that workload. और ये एक सोचने की बात है कि आपका playing 11 इसकी वजह से compromise हो रहा है कि आपके fast bowlers are not used to bowling those long spells. अच्छा, it's a surprise कि नसीम शाह they did not pick him. I thought he is not 100% fit, जिसकी वजह से शायद वो पहले दिन वो मैच नहीं खेला. बट अगर वो फिट था, 100% फिट था, तो why wasn't he included? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क. फिर आपकी टीम सिलेक्शन पे आ जाता है कि वो क्यों नहीं खेला अगर वो फिट था तो, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में ऐसी पिच के ऊपर उसकी पेस बहुत यूज़फुल हो सकती थी. और जैसे अभी हसन भी बात कर रहे थे कि मोहम्मद अली बहुत स्टिफ लगे हमें. वो अगर आप एक बॉलर जो पहली इनिंग में बॉलिंग ही नहीं करेगा तो दो बॉलर्स के साथ आप कितनी कर लेंगे, कितना बेचारों के ऊपर आप वर्कलोड डालेंगे. और फिर भी मैं हिम्मत देता हूँ, दाद देता हूँ अमीर हमजा की और खुरम शहजाद को, जिन्होंने पहली इनिंग में इतने ओवर कर दिए और करते चले गए क्योंकि और बॉलर ही नहीं था फास्ट बॉलर. बट अगैन प्लेइंग 11 में प्रॉब्लम थी इस बार भी. फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अबरार जो हैं वो लॉन्ग फॉर्मेट के उस तरीके से अभी तक क्रिकेटर डेवलप हुए नहीं, क्योंकि ज़्यादा क्रिकेट खेली नहीं है. वाइट बॉल क्रिकेट में 4 ओवर के लिए ही इज़ फाइन, मिस्ट्री आपकी चल जाती है. बट जब आपने 20-20 ओवर करने हो तो आपको बैटर को समझ लग जाती है कि आप कहाँ से कहाँ क्या क्या बॉल करें. अनलेस कि आपका बहुत अच्छा दिन हो, बहुत ही अनप्लेबल आप डिलीवरी कर दें तो वो बेहतर हो सकता है. बट अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि वेरिएशन जो है वो फिर आपकी pick हो जाती रीड है, हो जाती read हो है. जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे हो जाती है. I think, yeah, absolutely. And I think Abrar looked very rusty, to be very honest. I think something we saw with Shahnawaz Dahani, jab he toured with the side for a couple of years, it almost felt like he didn't get those competitive games. That's why I'll back your point with Naseem Shah. He's somebody. So you rest somebody, you rest your premium left arm fast bowler, makes sense. He needs a bit of rest to get back to his fitness. But somebody like Naseem Shah actually needs more game time to get back to his best. Could have played this game, as you said. I absolutely agree with you. और जिस तरह आपने कहा, अबरार actually felt so rusty. आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लें कि the amount of time he was landing on the dangerous area. It almost felt like he'd lost that rhythm of where he was, finishing his delivery stride and just being there. Got one twice. Eventually, at the end, the umpires were frustrated. He was frustrated himself. I mean, to be fair to him, आपने भी ये बात आइडेंटिफाई की कि he hasn't played test in so long. टेस्ट छोड़े, वाइट बॉल में हमने उनको टूर पे टूर कराया, हम उनको इंडिया का टूर कराया, हमने उनको यूएस घुमाया, वेस्ट इंडीज घुमाया. तो अब दुनिया घूम के आए, थोड़ा रस्टी तो वो होंगे क्योंकि गेम टाइम तो उनको नहीं मिला. बट समथिंग टू पॉन्डर अपॉन. आपने भी ये बात आइडेंटिफाई की, शान मसूद ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इट, कि कंपैरिजन टू बांग्लादेश, आप उनके जो की प्लेयर्स हैं, शाकिब अल हसन 69 टेस्ट मैचेस, मुशफीकुर रहीम 90 टेस्ट मैचेस, लिटन दास already 43, Miraz 45. These players who were out there for Bangladesh, they have that red ball experience and they have that game time behind them. ये एक stark difference है. आप लोग एग्री करेंगे कि अभी पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स के पास वो रेड बॉल एक्सपीरियंस नहीं है, एंड ये थोड़ा सोचने की बात है. Absolutely. I think especially, आप भी agree करेंगे, especially in terms of taking 20 wickets in a test match, we don't have that experience within our bowling lineup at the moment. I think to a certain degree, as Pakistani team, as their fans, vehement fans I should say, we need to sit back and let this roll a little bit. Let the side come into, there's always a time when your side has a rebuilding period. We've seen this with every side around the world. It almost feels like it's the time for Pakistan to do that now, because जब वो एक वक्त था कि आपके पास एक पेस बैटरी थी 145 वाले बॉलरों की और आप 140 पर कोई गेंद नहीं कर सका इस मैच में पाकिस्तान के लिए, इवन इन द गेम बिफोर. और यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके पास स्पिनर्स की, हमने लास्ट शो में बात की बिफोर द टेस्ट मैच स्टार्टेड, यू डोंट हैव दैट बैटरी ऑफ स्पिनर्स. इवन यू डोंट हैव अ रिस्ट स्पिनर.
You're still looking for the next Yasir Shah, Danish Kanaria, the Mushtaq Ahmed. You can't find the next Aklan anyway. So I think it's time we need to sit back and give it a little bit of time. But as you said, there is not enough experience in this side to pick up 20 wickets. अच्छा मैं बहुत हैरान हूँ कि आपने बात की लेग स्पिनर्स की. देयर इज उस्मान कादिर. व्हाई डोंट वी ट्रस्ट हिम? उस पर इतना ट्रस्ट क्यों नहीं दिखाया जाता है? इज प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया, इज प्लेड बिग बैश क्रिकेट. ठीक है वो ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट खेलता है, बट अगर वो एक सीज़न पूरा रेड बॉल का खेलेगा, आई थिंक इज़ अ गुड इनफ लेग स्पिनर. उसका फ्लिपर बहुत तेज़ है. देयर वाज जाहिद महमूद, आपने क्यों नहीं ट्राई किया उसको? बट ये तो फिर पिक करने वालों का ना कि क्यों नहीं आप अपने जो बेहतर, आपके सबसे बेहतरीन जो बॉलर मौजूद हैं उनको आप क्यों नहीं पिक कर रहे? लेट अलोन वो रमीज़ की तो हम बाद में बात करेंगे, जो आने वाले हैं, यारिफ तो बात की बात है, बट ये लोग तो काफ़ी अरसे से दोनों लेग स्पिनर्स तो खेल रहे हैं, बट वेयर आर दे? Yeah, I guess that's a very good point, Ali, and I guess that's also down a lot to the fact that the kind of pitches you wanted to prepare. So you actually were looking to कि आपके fast bowlers जो हैं वही आपका काम करें. You don't want to rely too heavily on your spinners. बांग्लादेश साइड की 11 की तो केमिस्ट्री ऐसी थी कि शाकिब ने खेलना ही खेलना था. They had 2 spinners they had to play with anyway. And the way Mehdi's become the man of the series, right? So he's absolutely proven why he was in that side to begin with. So I guess you missed out on that, and there is still a lot to sort out. I mean, it's very आपने क्योंकि clear. ये बात की तो मैं इसी पे थोड़ा और भी बात करना चाहती हूँ. क्यों हमारे डोमेस्टिक में ऐसी विकेट्स नहीं प्रिपेयर होती हैं जो स्पिन फ्रेंडली हो, जिस पे आपके बैटर्स क्वालिटी स्पिनर्स को खेलें भी और उनकी टेक्निक भी बेहतर हो? क्योंकि अब मुद्दा खाली बॉलिंग का नहीं है, या हमारे पास हमारे बैटर्स भी अक्सर स्ट्रगल करते That's a हैं good प्लेइंग question, yes. अगेंस्ट स्पिन. सो व्हाई डोंट वी हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फर्स्ट प्लेस? देखिए होना चाहिए, बिकॉज आई कवर लॉट ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट. इनफैक्ट पिछले 4 साल से तो ऑलमोस्ट सारी गेम, एक ही गेम जो ये हमने कवर की है, कोई ऐसा पिच हमने नहीं देखा है जिसमें कुछ चैलेंज हो बैटर्स के लिए. दे बीन वेरी वेरी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस. इनफैक्ट कदाफी स्टेडियम की तो ऐसी पिच थी लास्ट सीजन के, वो उस पर बैटर्स के लिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि बॉल आ ही नहीं रहा था. जितना भी आप तेज़ बॉल करेंगे इतना स्लो बॉल पहुंचता था, डबल पेस बॉल पहुंचता था अक्सर, कि वहाँ बैटर्स के लिए भी कुछ नहीं था. तो हमें इस चीज़ पर काम करना चाहिए. होपफुली ये दिस इज़ द मेन पॉइंट कि आप कहीं ना कहीं एक, अब पहले भी हमने बात की है कि आप आइडेंटिफाई तो करें कि आप अपनी क्या कंडीशंस चाहते हैं. आप अपनी फास्ट कंडीशंस चाहते हैं, टर्निंग चाहते हैं, बैटिंग पैराडाइज बनाना चाहते हैं. पहले अपने आप डिसाइड तो कर लें कि आप क्या करना चाहते हैं. क्योंकि अगर हम तेज़ पिचें बनाते हैं तो हम उनके फास्ट, दूसरी टीम के फास्ट बॉलर से आउट हो जाते हैं. स्पिन बनाते हैं तो आप उनके स्पिनर से आउट हो जाते हैं. बैटिंग बनाते हैं तो आपसे उनके बैटर्स आउट नहीं होते हैं. तो मुश्किलात तो हैं. हम कौन हैं? हमें हमारी थोड़ी सी पहले identify आइडेंटिटी करें, क्राइसिस exactly. चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट की, जो कि सब में होती है, हम सब में होती है. मैं जब छोटी थी तो मैं आई वांटेड टू बी एन एस्ट्रोनॉट. तो अब आप देख लें कि कहाँ पे पहुँच गई हूँ मैं. ये चांद तक तो नहीं पहुँची. But you're still flying, though. ओह थैंक यू, दैट वाज गुड. लेकिन क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस, और आपने बात की रीबिल्डिंग फेज, तो उससे पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है. अभी हमने स्पिन की बात की, टेक्निक की बात की, लेकिन इतना स्पिन पे चैलेंज जो है वो इस इनिंग्स में शायद पाकिस्तान की टीम नहीं हुए, क्योंकि ऑल 10 विकेट्स फेल टू पेस. लेट्स टेक अ लुक एट दोस फॉल ऑफ विकेट्स एंड सी हाउ पेस. हम एक शेल में चले गए क्योंकि थोड़ा घास था पिच पे और वो आके रेस्ट मारता था, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस नाहिद राना को मिल रहा था तो उसने डरा के आउट कर दिए. कई प्लेयर ऐसे हुए, मैं देख रहा था, रिजवान भी इवन उसको पीछे चल के खेल रहे थे, कोई कवर लाइन कर ही नहीं रहा था. अगर आपने इंग्लैंड बनना है तो फिर इंग्लैंड वाला दिल गुर्दा भी लेके आइए आप. वो मारते हैं, वो लाइन कवर करते हैं और फिर वो हिट मारते हैं. ऐसा नहीं है कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप दूर से चला देते हैं और वो रन उनको मिल जाते हैं. उनके पास भी एक मेथड है पॉजिटिव खेलने का, जो कि हम पाकिस्तान की टीम को नहीं मिल पा रहा है, और वो कैसे आएगा ये क्वेश्चन मार्क रहेगा. I think that's so true. It also tells you're missing that pace in your bowling lineup as well. You know, there's nobody who can come in if nothing's working on the wicket, hit the ball, bang it hard, and just attack the batters. Right? Offer something different. And not just for 4 overs. I mean, do that for the entirety of your spell. ये तो बड़ा Yeah. चैलेंज है. वैसे ये पिच था मोहम्मद अब्बास को खिलाने वाला पिच था ये. You could always use मोहम्मद अब्बास क्योंकि he is not retired, he is still playing county cricket. Yeah. But हम इतनी जल्दी राइट ऑफ कर देते हैं प्लेयर्स को कि बस ये ख़त्म हो गया तो अब इसको दोबारा लेके ही नहीं आना है. और आई बिलीव कि ऐसी पिच अगर रावलपिंडी पे दोबारा ऐसी पिच बनानी है आपने, तो आप मोहम्मद अब्बास को खिलाइए. उसके पास जो आप बात करें कि विद इन द स्टम्प्स आप बॉल करते रहें और बॉल हिलता रहता है उनका, तो ही कैन बी अ बेटर चॉइस कि आप उनके पास एक्सपीरियंस भी है, ऐसी पिच के ऊपर उनका इस्तेमाल किया जाए. Yeah, I think even Naseem would have worked Yeah. really well on this pitch. Somebody who hits the seam at a good length, comes in, balls it hard, it would have made a difference. और ये जो middle overs में या आपके पास ये जो plan B है एक fast attacking bowler का, ये इंग्लैंड भी लेके आएगा. If Jofra's not in their side, Mark would definitely will be. So I think we need to find that plan B as well. Liton Das और जब मेहदी की partnership लगी है, वहाँ पर भी हम एक plan B के लिए ढूंढ रहे थे कि कहाँ है हमारा plan B, and that was another thing we were missing
I think it tells you a lot of what we need to fix very quickly to turn this thing around. लेकिन बड़ा enjoyable था ये देखना बांग्लादेश को dominate करते हुए Yeah. with pace. I mean अपने It's never happened, right? नाहीद राना की अगर आप बात करें, आपने identify भी ये किया, उनकी height है, उनको वो extra bounce मिलता है, फिर वो pace से beat कर रहे थे और बड़े सालों के बाद बांग्लादेश में एक fast bowler आया है और इस नौयत का कि कंसिस्टेंटली 140 क्रॉस कर रहे हैं, 145, फिर आई थिंक उन्होंने अपने डेब्यू पे 150 क्रॉस किया है अगेंस्ट श्रीलंका, सो दैट्स एन एसेट राइट देयर एंड I mean it's so exciting to see that come out of Bangladesh after all of these years of playing international cricket. I think Please, sorry, please, go on. please go on. I was just going to say कि more than anybody, I think Pakistani fans pace को सबसे ज़्यादा appreciate हमें ज़्यादा Pace खुशी हो is रही है pace, yeah. हाँ, स्पेशली आप रावलपिंडी एक्सप्रेस के घर में आके जब हमें पेस से आउट कर रहे तो हमें फील तो होगा. बहुत आइकॉनिक था, बहुत आइकॉनिक था. लेकिन स्पीकिंग ऑफ होम सीरीज एंड होम टेस्ट, दिस इज द 10th टेस्ट सीरीज लॉस पाकिस्तान की, 10th consecutive टेस्ट मैच लॉस एट होम फॉर पाकिस्तान, एंड दिस हैज ओनली हैपेंड वंस बिफोर where they went 11 home tests without a win, which was back in 1969 and 1975. So not a great time right now for Pakistan's red ball team, but neither for the white ball team, considering के last 2 World Cups आपके कैसे गए. So एक जो अब कहना नहीं चाहिए कि panic button है, but it's something of that sort where you are trying to now pick up the pieces and make sense कि अब आगे क्या करना है. और इतनी consecutive, I mean February 2021 was the last time that Pakistan won a test match at home, and since then it's either been that drawing mentality and that drawing approach या avoiding loss या तो फिर straight out loss जिस तरह अभी हमने देखा. अब सवाल जो है, जो इस वक्त एक खतरे की घंटी नज़र आ रही है, वो है इंग्लैंड that is going to be touring Pakistan in just a few more weeks. October में ये tour scheduled है, and before that tour, no surprises there, we're playing white ball cricket. So that's great. Once again इस पे भी थोड़ी बात करें कि the gift that keeps on giving. हमारे red ball का tour है, I mean इंग्लैंड आ रही है खेलने, और preparation इस वक्त अगर हम यहीं से जज कर लें तो नहीं है, बट अभी चैम्पियंस कप आ रहा है. हाउ विल दैट हेल्प these players prepare for England? नॉट रियली, इससे तो इतना खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आई गेस वो टाइम स्पैन ही ऐसा था कि उनको पाकिस्तान चैम्पियंस कप इसके अंदर एडजस्ट करना था, क्योंकि दे वांट एवरीवन टू प्ले, क्योंकि आप चैम्पियंस कप की भी एक वैल्यू बनाना चाहते हैं जिसमें पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स हैं जो खेल रहे होंगे, इसलिए वो खेलना भी ज़रूरी था. तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि एक महीने में आप फर्स्ट क्लास का कोई भी 2 मैचेस भी खेले थे तो उसे उतनी प्रिपरेशन हो सकती थी जो इंग्लैंड सीरीज़ से आपको बचा सके, क्योंकि अब तो हम यही कहेंगे कि बचा सके, क्योंकि अब हालात कुछ ऐसे ही हैं, क्योंकि अगर हम बांग्लादेश से ऐसे आ रहे हैं तो इंग्लैंड तो डेफिनेटली आके डोमिनेट करेगा. जिस तरीके के क्रिकेट वो खेल रहे हैं, जैसा उनका जो सेटअप बन चुका हुआ है. What we can do is we can थोड़ा से हमें लगता है कि अब हमें थोड़ा पुराने प्लेयर्स को शायद दोबारा से लेके आना पड़ेगा बैटिंग में भी. आई थिंक उस्मान सलाउद्दीन एक ऐसा नाम है जो बहुत जल्दी राइट ऑफ कर दिए गए थे. हमने फर्स्ट क्लास वाला एक पूरी लॉट जो है वो बहुत ज़ाया हो गई, जो इस वक्त इंग्लैंड चली गई या यूएस चली गई, जो वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं. जो इन प्लेयर्स का बैकअप होने चाहिए थे वो सब या यूएस में हैं या इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहे हैं. वो यहाँ पे पाकिस्तान में बैकअप नहीं है. अब या हमारे पास बहुत यंगस्टर्स हैं वो अंडर 19, 20 या जो हैं जो प्लेइंग 11 खेल रहे हैं, वो बीच वाली लॉट है वो हमारे पास नहीं है. अगर यहाँ से कोई किसी को ड्रॉप करना पड़े तो किस बैटर को लेके आएंगे? आई डोंट थिंक सो कि आपके पास कोई भी ऐसा नाम आता है कि आप याद कर सकें यार इसको ड्रॉप करके उसको लें. ऐसा कोई भी नहीं है, इधर कोई यंगस्टर ही आएगा. तो हमें एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस बैटर की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी. मे बी उमर अमीन, ही शोड सम टच, जिसके पास एक्सपीरियंस भी है, स्किल भी है, क्लास भी है. तो शायद कहीं ना कहीं हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस बॉयज, थोड़ा स्किलफुल बॉयज. लेकिन वो थोड़ा सा भी सेम कैटेगरी आ जाएगी यंगस्टर. फिर आप उसको कहेंगे ये तो इसका पहला टेस्ट मैच है तो हमें थोड़ा मार्जिन देना पड़ेगा. हमें थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होगा बैटिंग के अंदर, जिसको बारी लेनी आती हो, जिसको थोड़ा लंबा खेलना आता हो, जिसने फर्स्ट क्लास में इतनी बैटिंग की होगी, जिसको 100, 200, इनफैक्ट 250, 300 करने आते हो, तो वो ऐसा प्लेयर ढूंढने पड़ेंगे. Can we see Imamul Haq making a comeback, because there is so much red ball cricket now scheduled at home? He could. I wouldn't be surprised if he does, but I think currently, the way Abdullah Shafiq started his career, Saim's just beginning, and you've got Khurera in the wings as well. I think adding another sort of like feather to that cap almost creates more confusion rather than resolves problems. But in terms of
जो अली ने बात की और जो आप बात कर रही हैं, आई थिंक इंग्लैंड के लिए तैयार होने के लिए आपको जो कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं लोग, शायद उन्हें इन्वॉल्व करना पड़ेगा. एंड आई थिंक जहां अली ने वो बात की कि लॉट ऑफ द पीपल वेंट टू यूएस और अदर प्लेसेस इज बिकॉज their careers domestically were not sustainable. That's something we've been highlighting for a while. I think that's something we're working towards now through the Champions Cup. So this whole era of the white ball cricket and now the red ball cricket actually tells you there are deeper rooted problems which need to be resolved on that level, and I think work has started on them. But short term fix कोई भी नहीं है आपके बिल्कुल पास. नहीं है. You have to wait. At the other end, I think it's yes, it seems like England's going to come and going to be another side who's going to dominate here. But in all those matches, as you said, in Australia in the two games, against Bangladesh in the two games, we were in the driving seat in both these two test matches and the two in Australia. That tells you, जो गिलेस्पी बात कर रहे थे कि टूर स्टार्ट होने से पहले, कि मैंने काम करना है पाकिस्तान की इस चीज़ पे कि वो कुछ सेशंस के लिए डोमिनेट करनी है, बट पूरे टेस्ट मैच पे कंपेटिटिव कैसे होगी, वो चीज़ अभी भी फिक्स होने वाली है. इट्स नॉट गोइंग टू बी फिक्स्ड ओवरनाइट, बट येस इट्स नाउ और नेवर, राइट? इट नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड नाउ. बिल्कुल. आई थिंक कोर इशू यहाँ पे यही है जो कि हमारे एक्सपर्ट्स ने भी हाईलाइट किया कि वी आर just not playing enough red ball cricket, and that is the area where we need to sort of make changes and make changes fast, because there is so much test cricket ahead of us. But test cricket के अंदर अगर हम talent की बात करें, bowlers हो या batters हो, it's just not coming through. यहाँ पे एक छोटी सी break लेंगे, but when we come back हम England के टूर के ऊपर थोड़ी और बात करेंगे, and of course we'll take a look at Shan Masood and how he has fared as a captain so far. Don't go anywhere. जी वेलकम बैक. बात हो रही है पाकिस्तान की रेड बॉल टीम के बारे में, एंड बिफोर द ब्रेक वी टॉक्ड अबाउट द बांग्लादेश सीरीज और उसके क्या टेक अवेज थे. सो मच दैट वी कवर्ड एंड वी ट्राइड टू मेक सेंस ऑफ. और आई थिंक हम बिल्कुल ब्रेक पे जाने से पहले जो पॉइंट हम जिस पे हम बात कर रहे थे वो यही था कि इवन द कैप्टन शान मसूद highlighted it in the post match press conference that we are not playing enough red ball cricket. और आधे आपके जो इश्यूज हैं वो वहीं पे हल हो जाएंगे अगर आपके प्लेयर्स रेगुलरली गेम टाइम उनको मिल रहा हो टेस्ट क्रिकेट का, 4 डे क्रिकेट का. एंड ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट थी. आप दोनों का भी मैं इस पर ओपिनियन लेना चाहूँगी कि आप जिस फॉर्मेट के प्लेयर्स आप खिलाएंगे, आपको जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको वही वापस मिलेगा, राइट? तो ये शान मसूद ने जो इस वक्त स्टेटमेंट आपके स्क्रीन्स पे भी आ रही है, it's really interesting to see कि a captain is being this expressive about what needs to be done in order to correct and sort of make amends going forward. कि आप इतनी क्रिकेट नहीं दे रहे हैं प्लेयर्स को, तो कैसे वो रेड बॉल खेलेंगे? उन्होंने ही ये कंपैरिजन ड्रॉ किया between the Pakistan side and the Bangladesh side. But Ali, your thoughts on Shan Masood and the way that he has pinpointed this issue and made it, you know, such a headline because everybody now is talking about this. देखिए बिल्कुल 100% आई एग्री कि जो उन्होंने बात की है वो बिल्कुल सही बात की है कि आपको रेड बॉल क्रिकेट खेलनी चाहिए. बट ये किसका कसूर है? अगर आपके प्लेयर फर्स्ट क्लास को वैल्यू नहीं करते हैं, वो 4 डे क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, तो इसमें क्रिकेट बोर्ड तो कुछ नहीं कर सकता, इसमें कोचेस तो कुछ नहीं कर सकते हैं. ये तो प्लेयर की अपनी विल है. अगर एक प्लेयर प्रेफर करेगा T20 लीग खेलना ओवर अ 4 डे गेम जो कि डोमेस्टिक का हो रहा है, अगर वो नहीं खेलना चाहेगा तो वो फिर किसी और का कसूर तो नहीं है. बीइंग अ कैप्टन, अगर शान मसूद खुद भी आई थिंक पिछले सीजन में बहुत कम क्रिकेट खेले, रेड बॉल क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं. पीपल प्रेफर कि आप किसी छोटी लीग खेलने को वो प्रेफरेंस देते हैं रादर देन कि आप घर पे आके अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें. देखिए जो इंटरनेशनल टूर्स हैं उस पर तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, वो तो फ्यूचर आपके फ्यूचर जिस तरह के प्लान्स होते हैं वो तो पहले से ही प्लान्ड होते हैं. बट द बेस्ट यू कैन डू इज़ कि आप आके अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें. इसीलिए जो चैम्पियंस कप होने लगा वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उस पर मैंडेटरी कर दिया गया है अब कि आप अगर चैम्पियंस कप या फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे, आपको NOC नहीं दिया जाएगा वाइट बॉल क्रिकेट खेलने के लिए. किसी भी लीग खेलने के लिए आपके लिए फ़र्स्ट क्लास खेलना ज़रूरी है. इसलिए शायद अब इम्पोर्टेंस को शायद अपना लिया गया या उनको रियलाइज़ हो गया है जिस तरीके से कि आप फर्स्ट क्लास खेलें और तभी आपको NOC मिलेगा. और ये अच्छा स्टेप है और होना भी चाहिए. और हम दुनिया के बाकी जो टीम्स हैं और जो बोर्ड्स हैं उनसे भी सीख सकते हैं कि आप टेस्ट क्रिकेट को इंसेंटिवाइज कैसे कर सकते हैं, रादर देन क्रिएटिंग रोड ब्लॉक्स
and making these compulsions आप अगर incentivize करते हैं, because obviously funds or resources तो available हैं, अब उनको आपने rightly कैसे apply करना है? Do you think कि this is something that we could also explore in the future कि आप टेस्ट क्रिकेट के मैच फीस बढ़ा दें या एक्स्ट्रा फाइनेंशियल इंसेंटिव दे दें प्लेयर्स को who are of course missing out on the leagues in order to play Pakistan's domestic cricket? Absolutely, Roha ji, I'm all for it because that then creates a sustainable model. Then that creates competitive cricket at your home at that level, जिससे आपको ट्रांजिशन करना बड़ा आसान हो जाएगा. अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है? वही बात, अगर आप काफ़ी साइड्स देखें, दुनिया इंग्लैंड की बात कर रहे थे फॉर इंस्टेंस, देयर 11 फॉर टेस्ट इज ऑलमोस्ट सेट, और वो टेस्ट क्रिकेट ही ज़्यादातर लोग उसमें से खेलते हैं. उसकी वजह क्या है? वो डोमेस्टिकली भी टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार हो रहे होते हैं. दे कीप देमसेल्व्स रेडी. दैट्स ऑल्सो आई थिंक समथिंग शान्स अलूडिंग टू एंड एज यू अलूडेड टू, कि उसका एक मॉडल क्या हो सकता है जो सस्टेनेबल हो, जिससे प्लेयर्स को एक लालच भी हो कि हाँ मैं अपना सस्टेनेबल एक करियर भी बना रहा हूँ और मैं अपनी क्रिकेट इंप्रूव कर रहा हूँ और पाकिस्तान के लिए चैलेंज कर रहा हूँ. Absolutely, ये जो चैंपियंस का पार है, that's going to be one of those things. I don't mind that. I don't mind implementing this because then that makes cricket competitive at home for some time. But that, yes, long-term solution-wise, absolutely आपको वो चीज़ें बेहतर करनी होंगी, आपको फीस बेहतर करना होंगी. और एक और चीज़ रोहा जी, अगर हम ये ग्राउंड की बात अभी तक इसको हम इस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, हम स्पिनर्स की बात करें, बाकी चीज़ों की भी, आप सर्टन वेन्यूज को ना सर्टन विकेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बनाना शुरू कर दें, कायदे आजम ट्रॉफी के लिए और ये अब चैंपियंस कप के लिए. आप मिसाल है, आप पिंडी जाते हैं, आपको पता है पेस फ्रेंडली आपको विकेट मिलेगी. आप कराची जाते हैं, आपको पता है मिसाल है स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स आपने बनाने. यू विल नो ऑलरेडी प्लेइंग ऑन दोज विकेट्स, हुएवर कम्स इन, दिस इज हाउ दिस इज गोना बिहेव, राइट? एंड दैट्स हाउ यू गोना बी रेडी फॉर एनीथिंग व्हिच कम्स अप. बट ओवरऑल जब ये 9 टेस्ट अनाउंस भी हुए थे, 7 एट होम, and now coming out of this series, Shan's talking about the same things. It's like we need to play more red ball cricket. He was saying the same things before. He's saying this now as well. I think he realizes within that team as well, as we've highlighted, in terms of fitness, mental fitness, physical fitness, your players are way short of where they should be to compete for the ultimate challenge of the game, which is the test format. And going forward, do you think आप, क्योंकि आप लोग क्रिकेट कवर करते हैं, इतना बारीकी से एनालाइज करते हैं, and you also have a keen eye on what is happening globally, do you think going forward players का interest towards test cricket will start diminishing? क्योंकि दुनिया में बहुत players हमने ऐसे देखे हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से बड़ी अर्ली रिटायरमेंट ले ली in order to play more white ball cricket and play more league cricket. Do you think this will also affect Pakistan going forward? Because आपके सामने जो हमने अभी अपना रिकॉर्ड डिस्कस किया है, फरवरी 2021 से पाकिस्तान ने कोई होम टेस्ट नहीं जीता. आखिरी 5 में से 5 टेस्ट मैचेस अंडर शान मसूद कैप्टनसी हमने हारे हैं. गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं दे विल स्टिक टू द लॉन्गर फॉर्मेट? देखिए, सबसे ज़्यादा शायद नुकसान पाकिस्तान को ही होने वाला है इस चीज़ का कि आप ज़्यादातर फोकस जो है वाइट बॉल क्रिकेट पे चला गया है. मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन है कि बाबर आजम क्यों नहीं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते? व्हेन वाज द लास्ट टाइम बाबर आजम ने एक फ़र्स्ट क्लास का गेम खेला होगा? इज़ आउट ऑफ फॉर्म, ही शुड गो बैक टू द फर्स्ट क्लास सिस्टम. आप वहाँ जाके पूरा सीज़न एक खेलें, अपनी फॉर्म वापस लेके आए, अपनी गलतियाँ जो आपसे हो रही हैं, जो आप जल्दी आपकी मूवमेंट हो रही है, फर्स्ट क्लास में जाके आप ठीक करें और वापस आएँ. व्हेन वाज द लास्ट टाइम शाहीन प्लेड अ फर्स्ट क्लास क्रिकेट? आई डोंट थिंक सो. आई डोंट इवन रिमेंबर. 4 साल से तो मैं कवर कर रहा हूँ, मुझे नहीं याद कि 4 डे इन्होंने कभी भी खेला होगा. तो जब आपके सीनियर जो खेल रहे हैं उनका रुझान ऐसा होगा तो डेफिनेटली वो चीज़ ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा. वो नीचे जूनियर्स के अंदर भी वो चीज़ आएगी कि जब यही नहीं खेलना चाहते, इनका ही फोकस वाइट बॉल पे है, तो हम 5 दिन या 4 दिन गर्मी में क्यों खपेंगे? हमारे पास भी एक ईजी वे आउट है. 4 ओवर किए या 20 ओवर बैटिंग की और आपने उससे शायद ज़्यादा पैसे कमा लिए और आप निकल लिए. अब शायद ये ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है चैंपियंस कप में, पैसे ज़्यादा होंगे, फोकस ज़्यादा होगा. और ये जो NOC है आपको ज़बरदस्ती करना पड़ेगा. आप जब तक NOC को लिंक नहीं करेंगे आप, जो कि आप वो कर रहे हैं, तब तक वो फोकस नहीं हटेगा. अब फोकस शायद अब होगा कि आप फर्स्ट क्लास खेलें, फिर NOC लें और फिर जाएं. I think Rohit, जो आपका wider question, I think you're absolutely right because generally world over the cricket focus for upcoming players has shifted toward the white ball game rather than the red ball cricket because of obviously the leagues around the world, the opportunities they get to travel to different places and experience different cultures, play against cricketers, learn from cricketers within their team and so much and and so forth. The problem is in terms of जो अली ने भी बात की, I absolutely agree.
मसला ये आ जाता है कि a lot of these people who are with the Pakistani national side are either touring during the Quaid-e-Azam Trophy, or they're playing a league, or they're doing something. It's I wouldn't mind having in a year's calendar those 2 months where you're saying, right, everybody is playing domestic cricket, your premium tournament. You have to play it. I don't mind that at all. उससे आपके domestic players को भी फायदा होगा. If Babar Azam is somebody जो domestic cricket खेल रहे हैं is not getting that challenge of an international fast bowler to face, then how is he going to improve as well, right? But if all your premium fast bowlers are playing that league as well, then it's going to make a difference, and to everybody around them as well. So that makes sense. So I think that will bring sustainability to it. That's a fair point कि सब players हों तो level of competition बेहतर होगा ना, क्योंकि आप अगर वही थोड़ा सा आप कहते हैं सब स्टैंडर्ड नहीं कहना चाहिए, बट थोड़ा सा लोअर स्टैंडर्ड कंपेटिटिवनेस जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं बोथ एज अ बैटर एंड एज अ बॉलर, तो ऑफ कोर्स आपके स्किल्स कहीं ना कहीं जो है वो लिमिट ज़रूर होंगे. बट गोइंग फॉरवर्ड वही बात है, क्योंकि हम हर चीज़ को लिंक करते हैं विद सस्टेनेबिलिटी एंड विद लॉन्जेविटी एंड स्टेबिलिटी. उसके बगैर जो है आई थिंक कोई चीज़ लॉन्ग टर्म अपने रिजल्ट नहीं दिखाएगी. आपको लगता है अली, आप एग्री करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर थोड़े से शॉर्ट टर्म गेम्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, या जब नया सेटअप आता है और कुछ नए लोग आते हैं देन दे वांट टू डू थिंग्स देयर वे, एंड देन जितनी भी जिसे कहते हैं ना ग्रोथ हुई होती है या प्रोग्रेस हुई होती है वापस फिर हम ज़ीरो पे आ जाते हैं. इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, शायद सारे मसाइल की जड़ ही है जो आपने अभी जिक्र किया है कि आप जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, आप अगर आपके ऊपर लोग ही चेंज होते रहेंगे तो किसके आइडियाज़ इंप्लीमेंट हो रहे हैं, किसकी स्ट्रैटेजीज और किसकी प्लानिंग आपकी इंप्लीमेंट हो रही है. यू जस्ट नेवर नो कि आप आज एक स्ट्रक्चर है, अगले साल वो होगा या नहीं होगा, उससे अगले साल वो होगा या नहीं होगा, ये बंदा होगा या नहीं होगा. तो जब तक आपके ऊपर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, एक प्लानिंग के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, तो रिजल्ट कैसे आएंगे? हर दफ़ा अभी भी इवन प्लेयर्स को नहीं पता था कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कौन सा आने वाला है या क्या होगा, कैसे होगा. तो वो अनसर्टेनिटी जब रहेगी तो प्लेयर तो डेफिनेटली अपने आप को देखेगा कि मैं सिक्योर कैसे होता हूँ. वो शायद लीग खेल के ही होगा, तो वो पाकिस्तान के क्रिकेट को लोकली रिस्पेक्ट नहीं देगा. अगर कंसिस्टेंसी होगी, उनको पता होगा कि हमने ये पाथवे है, यहाँ करना है तो हमें NSU मिलेगा, ये करेंगे तो पाकिस्तान खेलेंगे, या रीजन में परफॉर्म करेंगे तो आप चैंपियंस कप में आपको जगह मिलेगी. तो ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो चैंपियंस कप की लेयर है. And do you think that this uncertainty also affects the captain, because he is the one out there making those decisions? And शान से भी बात पूछी गई थी about his job security, and he said I'm not worried about that. जितने टाइम के लिए भी मैं हूँ, I will try to do my best. But do you think this somewhere affects every person who leads Pakistan? Absolutely, I think it's absolutely does, because at the end of the day we are all human, right? We all get affected by these decisions, and I think every player does as well. जब आपके कोच से लेके आपके चेयरमैन तक सब चेंज हो जाना है, आपने कोच का, आपके कप्तान ने आपको किस तरह क्रिकेट खेलनी है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो चेंज हो जाना है. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, एक कप्तान आपसे 4 ओवर्स करवा रहा है जैसा नाहिद राना से करवाए गए थे, ऑल ऑफ अ सडन नेक्स्ट कप्तान आता है, वो कहता है तुमने 8 ऑन द ट्रॉट करने, योर बॉडी इज नॉट रेडी, योर माइंड इज नॉट रेडी. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल. सो आई थिंक एब्सोल्युटली मेक्स अ डिफरेंस. जहाँ तक आपने शान की बात की, I think Shan also needs literally some runs under his belt. I think as any captain, you feel much more confident, much more sort of like chirpy, upbeat, making those decisions, are confident with those decisions, are positive about those decisions when you're doing well yourself. I think him saying that he wants to introduce or induce a certain brand of cricket within the Pakistani side, regardless of what he's doing or how he's batting, is a positive sign, but I'm sure it will help his cause a lot if he gets some runs under his belt. I think that's one of the things he was talking to or alluding to while talking about that insecurity about his job. But yeah, and we would want that too for him. You know, why not? He's the Pakistani team's captain. Sure, I mean, we would love to see him getting runs, and of course, उससे फिर बाकी बैटर्स को भी इंस्पिरेशन मिलती है. And we need to see. हमारा भी वैसे ये जो 2 टेस्ट मैचेस आपने देखे हैं, बैटिंग के ऊपर हमने अभी तक इतनी बात नहीं की शो में. Where do you think Pakistan can improve as far as the batting depth goes? Because Abdullah Shafiq hasn't been in the touch that he is known for. And then Saim got some runs, but it was mostly lower down the order that we saw, especially Rizwan coming through on both occasions in both the test matches. But where do you see Pakistan's batting depth going in the upcoming series against England? देखिए, the problem is top 3.
द मेन प्रॉब्लम, क्योंकि शान मसूद इज़ नॉट गेटिंग रन्स। वो इतने इंपॉर्टेंट नंबर है नंबर 3 पे, क्योंकि वो आपकी बेस होती है। अगर आपका नंबर 3 रन्स नहीं कर रहा है तो वो बहुत मसला है। आप कितना मार्जिन और देंगे अब्दुल्ला शफी को, ये भी देखना होगा कि कितना आप उसको चांस और दे सकते हैं। ठीक है, आप अभी उसने रन्स किए हुए हैं, इज़ अ क्वालिटी प्लेयर, बट देन अगेन जब तक आप रन्स नहीं करेंगे, उस टैलेंट को आप परफॉर्मेंस के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं है उस टैलेंट का। अगर वो दिखता तो बहुत अच्छा है लेकिन वो रन्स नहीं कर रहा है तो वो फिर पाकिस्तान के काम तो नहीं आ रहा है। इसी तरह साइम अयूब को भी जल्दी सीखना होगा, क्योंकि सेट होके अगर आप 50 रन्स करके आउट हो रहे हैं तो ये ज़्यादा बड़ा क्राइम है रादर देन आप नए बॉल से शुरू में आउट हो गए। और जिस तरह के शॉट्स उसने मारे हैं, 2-3 बहुत डिसअपॉइंटिंग शॉट्स हैं। आपको मौका मिल गया, ठीक है, आप पॉजिटिव खेलना चाहते हैं, बट देयर हैज़ टू बी अ मेथड बिहाइंड इट कि आपने कौन सी शॉट पिक एंड चूज़ करना है, कौन सी शॉट को आपने कहाँ खेलना है। ऐसे नहीं है कि आपने निकले और मुँह उठा के हिट मार दी और आप स्टंप आउट हो गए, ऐसा इंटरनेशनल में बहुत कम होगा। तो आपको बहुत जल्दी सीखना होगा। तो प्रॉब्लम है वो टॉप 3 में है। बाबर सूनर और लेटर ही विल गेट रन्स। इस सीरीज़ में नहीं हुए, अगली में हो जाएंगे, बिकॉज वी नो बट वट बाबर इज़, वो उसकी क्या उसका टैलेंट है। तो बाबर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। नीचे सलमान अली आ गए, साउथ चील, दे सेटल्ड। तो प्रॉब्लम है वो टॉप 3 है, उनको रन्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रन्स भी नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट इतना टाइम गुजारें कि नीचे आने वालों के लिए थोड़ी कंडीशन आसान हो जाए। एनीथिंग यू वुड शफल बिफोर ऑफ कोर्स वी रैप अप द शो, क्योंकि हमने अभी तक इतनी ऑर्डर पे बात नहीं की है। डू यू थिंक मे बी सलमान कैन बी यूज्ड इन अ बेटर स्पॉट, या अगर आपके ऊपर से रन्स नहीं हो रहे, थोड़ी ओपनिंग स्लॉट में थोड़ा शफल हो सकता है? एनीथिंग दैट यू वुड चेंज इन द ऑर्डर? I mean, not at the moment because maybe आपके जो ऑलराउंडर नहीं खेल पाए, शायद सलमान अली आगा की जगह उन्हें चेंज किया जाता जस्ट टू हैव अनदर फास्ट बॉलिंग ऑप्शन। बट आगा आई फील सॉरी फॉर आगा बिकॉज ही इज अ क्वालिटी बैट्समैन, बट ही कम्स सो लो डाउन द ऑर्डर कि एक आउट होते ही हैज टू प्ले विद द टेल। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फाइट फॉर हिम एवरी टाइम एंड ही इज जस्ट फाइटिंग टू सर्वाइव एंड स्कोर रन्स। In terms of जो अली ने बात की, absolutely agree. I think somebody like Saim, he's young, but he's going to need to know how to, if you've gone through that difficult bit, now you've got to cash in and not throw away your wicket, right? But Salman does chip in with the ball as well. I mean, we are short on spinners and he does add that Absolutely. depth I to the think bowlers I'm a as fan well. of Salman's, right? Because he adds that extra spin bowling option as well. But that's what I'm saying. Like, I feel sorry for him because there's not enough room for him. I think जो आपने बैट्समैन क्या डिफरेंट कर सकते हैं वो बात की, हम ज़रूर अटैकिंग पॉजिटिव क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, हम ऑल फॉर इट। बट कभी कभी जब आपकी फॉर्म नहीं लगी होती, आपके पैर नहीं खेल रहे होते, या यूर मिसजजिंग डिलीवरीज, यू जस्ट नीड टू स्पेंड टाइम एट द विकेट। दैट्स ऑल. That's all you need to do. It takes an innings literally just to get back into your rhythm. You and can your learn form. from Bangladesh in this match the way that they took that time and rebuilt and did not go for that draw at all. They were like, no, we're going to find a result among all of this chaos, and they did that. Absolutely, and I think जो वो पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स थी उसकी उसने ही बुनियाद रखती थी इस चीज़ की, when how their players approach that. I mean, second test में आखिरी इनिंग्स में जाकिर आते हैं, उनसे तीनों टेस्ट में नहीं लग रहा था. Now he tries to hit out and scores a 40 and wins an award at the presentation ceremony. But that's something he had to do. Chasing a low total was a strategy they went for, right? Made sense for them. But for us to just get back into a rhythm of test cricket, I think the batters just need to spend time at the crease. Everybody does. And then you can always, once you're in that groove, you can chase the run rate however you want to. Gentlemen, thank you so much for your time. This is all we have for you tonight on Glitterati. But don't go anywhere, because tomorrow at 9 p.m. sharp, we will be bringing you a Premier League show. So lots to cover over there as well. बहुत शुक्रिया देखने के लिए. We will join you tomorrow at 9. अपना ख्याल रखिए. Good night.